Welcome to another episode of the Street Talks Back. And today we have with us Sarosh, who does amazing work for women in Pakistan. And she does it through a platform called Dear Body. And if you could just introduce yourself a little bit. Definitely. First of all, thank you so much Haya, for having me. And so, by profession, I am a communication specialist. So, for the past 2 months, I've been working with WWF Pakistan in the communications department. But this, apart from that, I do work online as well. So, I have my social media presence where I started a podcast almost 3 years ago, which is called Dear Body, जहाँ पे मैं पाकिस्तानी औरत के perspective से उनके इश्यूज पे टैप इन करते हुए whether it's health related social issues politics growing up I was witnessing a lot of white women online and I could not resonate with them. तो मुझे ऐसा मैंने I had to deal with a lot of things whether it was eating disorders XYZ all on my own. So the fact that I thought to myself कि ये जो मेरे collected experiences है जिससे मैंने खुद सीखा, maybe I could make people feel less alone, which is was the sole purpose of starting this platform. So I do social commentary over there as well. मैं entertainment industry के ऊपर बात करती हूँ. So there's a bunch of topics. Health के ऊपर अब मेरा ज़्यादा हो गया. And a lot of other things, so female presence, global level पे. But this is overall what I'm doing currently. So I would want to add here when we're talking about women and when we're talking about women who have opinions in one way or the other, one who want to do something, start up project, koi bhi ho, if I'm taking my own example, we're running an NGO. आपको whenever you're trying to be yourself, the labels are given to you. Bossy, intimidating, very serious, very sensitive. So for that, what would you say? ये code of conduct एक तो ये existence में आया किधर से है, right? And how do we actually challenge it, or should we be a part of it? And even if you want to be a part of it, how do we be a part of it? So एक तो इसमें there's a bunch of things like being too much. ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट एक औरत के साथ एसोसिएट किया जाता है कि यू टू मच you get like too angry or you're too bossy like you said. So these are labels which are associated with a woman since day one, like from a very young age. And growing up, you just like up you spend majority of your time tackling with these labels कि हम वो मौका आता ही नहीं है for you to actually focus on your dreams or your goals in life because you're busy breaking them. Like जो stereotypes हमारे साथ attach कर दिए जाते हैं. जब बात आती है एक ideal woman की, there's no such concept as that of an ideal woman. I even in academia I wanted to talk about it कि क्या होता है एक ideal woman का क्या concept है. Whether she is like does she have to be the same as a mother, उसके साथ क्या labels attach किए जाते हैं. And it was just all too complicated for me कि मतलब what am I then? Like I don't want to be associated with any of these labels. I want to be defined. Whatever labels are attached to me, fine, I get too angry, that's fine. Fine, yes, I'm too intimidating, so what? So like because when we look at like how men are viewed, उनके साथ ये labels नहीं attach किए जाते हैं. It's more fluid for them, but for us, it's a whole another story. So I don't even know. I think it's for me, even if it's like I'm still going through that process. Whether professional space may ho, because like you yourself said that you're running an NGO and you people look okay, there's this female who is running a show. And for men, it's just like abhi bhi, which is crazy. कि आज के दौर में भी it's like a very fresh concept. कि how can a woman boss us around or tell us what to do? It should be the other way around. क्योंकि हम एक ऐसे पदरशाही निज़ाम का हिस्सा हैं जहाँ पे अ वुमन कांट लीड, शी कैन फॉलो यू, आपके साथ नहीं चल सकती है, आपके पीछे-पीछे चलेगी, सर झुका के चलेंगी, चाहे वो एक डोमेस्टिक रोल ही आप उसका देख लें, चाहे आप उसका प्रोफ़ेशनल रोल ले दें, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर उसके वो जगह ले भी ली है, वेदर इट्स आप कमिंग आउट ऑफ प्रिविलेज उसको मिल गई है या उसने मेहनत की है, it's a very very tough journey. So I don't think इसका कोई क्लास से ताल्लुक है, एज से, कलर से, रेस से, does not matter. It's women can resonate with each other irrespective of which class they belong to. And it's also very simple as the fact that all people are not the same, right? No, If I'm talking about dogs or animals,
हर एनिमल की अपनी एक प्रेजेंस और उसकी पर्सनालिटी है। कुत्तों में भी यही है कि कुछ बहुत बोलेंगे, कुछ खामोश होंगे, कुछ डरपोक होंगे, कुछ बड़े डोमिनेंट होंगे। Men are allowed to have all of these emotions, but when it comes to us, and it's really difficult, you know. I was really young when I started Janda. I was 21, so I did not exactly know what was happening, and everybody was very nice to me because I was young and naive. And I would smile a lot, so they thought that, you know, we can intimidate her. But the more I got to know my work, and the more I created my protocols, that, you know, this is what I want. The moment you know this is what you want, that's a no. And I think, even, do you think that families in Pakistan, they also like sort of like aid this entire concept? Because आपकी family, at least if I'm talking about myself, जी कभी कभी बहुत प्यार से सही, बट लड़कियां इतना सख्त नहीं बोलती हैं। लहजा नरम रखना चाहिए, आहिस्ता। लड़कियां पॉलिटिक्स पे इतना नहीं बोलती है। So these things, do you think that पूरी society, whether it's your house, even schools, I think in Pakistan, I recently graduated. I don't think that, you know, anybody, they would say that we are trying to be inclusive, but the moment a girl is too much, then she's too much. Yes. So do you think everything is also aiding this? आई थिंक इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। अगर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम लिए हैं, जैसे हमारा एजुकेशन हो गई, हमारे सोसाइटी जो एक रोल अदा करी है, हमारी वर्क स्पेसेस, ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूट इन सम वे, बिकॉज उनकी अपने लॉजिस्टिक्स, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, सो दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ पावर। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एक्सरसाइज दैट पावर ओवर अनदर इंडिविजुअल। एंड वी ऑल नो, और ये बहुत वाइड एंड क्लियर बात है, that women are at a very belong to a very disadvantaged group, right? So ये बात well known है already. So now you have that kind of power where you get to decide where you can place a woman in society. So I think that family, it's a bit different, because वो अक्सर they are mostly working to appease those around them. हम अक्सर ये भूल जाते हैं that, you know, you have built created this beautiful family now. You are responsible not just for like raising them or giving them an education, but you have to nurture them. उनके emotions, how do you raise them, what you communicate to them, क्या आप उनको feed कर रहे हैं knowledge that they're going to imbibe and then, you know, execute that in society, whether it applies to a woman or a man. So I think they are responsible for that. लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे बहुत सेलेक्टिव रोल्स हैं। और आपने जैसे बात की कि किस तरह से व्हेन यू स्टार्टेड टू नो योरसेल्फ, आपने अपनी एक आइडेंटिटी क्राफ्ट की, दैट बिकेम अ प्रॉब्लम बिकॉज हमारी सोसाइटी में मुझे नहीं लगता कि एक औरत की आइडेंटिटी या उसकी एक शनाख्त, उस चीज़ को उस पे इतना एम्फेसिस डिस्प्ले किया जाता है। बस उसको बता दिया जाता है कि आपने ये करना है, उसके बाद लेकिन वो फादर्स हाउस, देन हस्बैंड्स हाउस, देन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड देन दैट्स इट, लाइक योर बच्चे, सॉरी, लाइक मदरहुड, और दैट कॉन्सेप्ट, एंड दैट्स प्रीटी मच। So like आपको decide is like predestined, yeah, you have to say बाहर भी, then it's going to be a battlefield for you that you have to, you know, um, combat so many, all sorts of people, all sorts of obstacles in your life. So I think that's pretty much what कुछ लगता है बहुत कॉम्प्लेक्स। Yes, but then you cannot detangle it. I can't, it just लगता है कोई clear cut answer नहीं है ऐसी चीज़ का। मैं recognize कर लेती हूँ, yes, and like, you know, you can talk about them, but then what next? So when we're talking about women, and maybe the concept of the street talks back is talking about marginalized or oppressed people. Because मुझे ये नहीं पता था कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, वो जिसको मैं चॉइस कहती हूँ, वो किसी का तो प्रिविलेज है। सो वो जो औरतें हैं, सो वी टॉकिंग अबाउट दैट, एक सबसे बड़ी चीज़ है, हमें बताया जाता है कि आपको अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई है जी, सो यू कैन बी एम्पावर्ड इन सम वे और द अदर। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द स्ट्रीट्स विद दीज वुमेन, they are financially independent, right? Because they are earning, yes, and they are paying the bills and the rent, raising the children. Most of the women that I was in contact with, उनके husbands काम ही नहीं कर, so they are completely independent. Yet they are still asking for permission. They are not allowed, you know. Women told me in these areas, in these streets of Pakistan, कि उनको अभी तक इजाज़त नहीं है कि वो अगर हमसाये से भी मिलने जा रही हैं, उनको पूछ के जाना है। So, you know, when we're talking about independence and how to actually be empowered, what is the way for these women?
why are they still under that, system despite sustaining themselves by themselves? I think it comes from a place of extreme insecurity for a man to witness another woman being empowered, especially that if that woman happens to be the wife. Because it might को बता दिया जाता that when you are at a certain age है, आपने फिर कमाना है, उनको भी roles assigned है, and that you have to earn, you have to make a living for yourself, for your family. And अक्सर औकात वो उनसे नहीं हो पाता. So when they witness that the wife is maintaining that role, and this is like दो roles अब उभर रही है, एक औरत का भी रोल निभा रही है, उसके challenges भी, और उसके साथ साथ एक जो एक मर्द को जो रोल अदा किया जाता है, अदर की ये कोई जेंडर्ड है, बट अगर मैं अपनी हमारी सोसाइटी की अगर बात करें उस लिहाज से तो होता ये है कि एक when you tap into that insecurity, now it can come out in numerous ways. They can be hostile, वो आपको मार सकते हैं, वो आपको गाली गलौज कर सकते हैं, और they can tell you what to do because they like we know better, जिसको हम misogyny कहते हैं अंग्रेजी में. उसका मतलब ही है that you tell a woman you don't know how to function, इवन दो वो घर चला रही है, रोटी जो है उसकी वजह से घर में आ रही है, बच्चे उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, बर्ड दे बीइंग रेज्ड बाय द वुमन, और घर पे खाना एवरीथिंग इज बीइंग डन बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क. Yeah. एंड वो धक्के पारी उसके बावजूद मैन वुड बी लाइक कि मैं तुम्हें बनाऊँगा कि तुमने कहाँ जाना है, ही आई नो बेटर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए. एंड इस वजह से फिर इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं जो कभी कभी एस्केलेट करते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि मैं एक औरत का जो जहनीत है उसको कंट्रोल कर सकूँ, बिकॉज दैट इज़ द ओनली कंट्रोल आई हैव वो माई लाइफ. Yes. वो एक वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करती है, तो मैं बच्चों को भी मार सकता हूँ, मैं बीवी को भी मार सकता हूँ. ये क्या कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नहीं इधर ही रहेंगे, बिकॉज उनके घर वालों ने उनको कहा कि अब ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ पे जियोगे, यहाँ पे ही मरोगे, अमायका सब मत था. मोस्ट विच इज इन एज फॉर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इट्स slowly changing, but इतनी fast pace का तो नहीं चल रहा. I can still speak for the majority of the family systems. तो this is exactly what's happening in most cases. मैं generalize नहीं कर रही, but अक्सर औकात से it's mostly psychological in nature, which I believe a medical licensed professional can explain it better. But this is mostly what's happening. And when we're comparing, I think, ourselves to them, I remember when I was in university, I took an off, right? And my main instructor questioned me again and again, why did you take off? I'm not giving you your assignment. So I just told him I was on my period. And later I found out that he complained that I used the word period. And I just felt so, I did not know it was big enough because it's a pretty common, normal thing. Yes. And I always in my university said that, I think that there should be day off. And even when I'm working night now, I'm talking about these things कि एक maternity leave का concept है और मिलता है, and बहुत अच्छा लगता है कि आपकी वो चीज़ recognize की. But then I thought at the same time that these women, when I talk to them, even as women, when we employ them, we don't consider कि हमें इनको भी paid maternity leave देनी चाहिए. Or if they are on their period, like I asked, did this little survey in the street, इनके पास वो concept नहीं कि हम rest करें या हम hot water लें, बस दवाई खाते हैं. They don't even have access to pads. But we don't allow them as a society कि आप एक day off ले लो, या आप paid maternity leave अपने इन employees को दो. So, first thing क्या हम इनको एज अ सोसाइटी क्या इनको हम औरत या इंसान ही नहीं समझते कि इनसे तो करवाना है, हम डिजर्व करते हैं वो राइट, बट शायद ये नहीं करते. सो फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाई इज इट अ लग्जरी नॉट अ नीड, दिस इज अ प्रॉपर नीड. Yeah, it is. It is. सो आई हैड नॉट लाइक heard this from anywhere कि कोई अपने स्टाफ को मेन maternity is there. And also when I was an activist and feminist on the Instagram as well. But how do you think कि हमारा जो एक एक्टिविज्म भी है वो परफॉर्मेटिव है, क्योंकि जहाँ मैं मटर्निटी लीव का इंस्टाग्राम पे बोल रही थी बहुत ज़रूरी है, मेरे घर पे तो नहीं मिली उनको. सो हाउ मच डू यू थिंक पीपल एक्चुअली अप्लाई दैट इनटू लिटिल थिंग्स इन देयर डेली लाइफ? Yeah. I can up जाके तो बहुत चीज़ जो है सोशल मीडिया डज हैव अ वेरी वास्ट इम्पैक्ट. हम जब बहुत लाउडली डिक्लेयर करते हैं हाउ वी फील अबाउट अ सर्टेन सब्जेक्ट, उसका इम्पैक्ट आता है. आपके बहुत सारे
सोशल इश्यूज़ को लेके देखा होगा, चाहे वो हम फ़लस्तीन की बात करें या कोई भी, उसका इम्पैक्ट आता है दैट पीपल इन पावर एक्चुअली रिकॉग्नाइज़ इट एंड दे बीन वेरी वोकल अबाउट द फैक्ट कि सोशल मीडिया पे इस बारे में बात हो रही है, सो वी एक्टिवली नीड टू डू समथिंग अराउंड इट। बेशक उनके भी उनके देखने का नज़रिया ये हो कि अब सोशल के बात हो रही है इसलिए हमें करना पड़ा, नॉट बिकॉज़ ये एक्चुअली वांट, ठीक है? इट माइट बी बट स्टिल इट्स पावरफुल। हाँ, इट इज़। सो इट हैज़ चेंज्ड, सो मुझे वो अब उस तरह से परफॉर्मेटिव नहीं लगता बिकॉज़ आई फील लाइक कि अब हम जब बात करते हैं तो वो सुनी जाती है। बेशक उसके पीछे इंटेंशन जो है आपका हॉलो है। तो वहाँ पे इट डज़ वर्क, बट जब यहाँ पे ये आपने जो सर्टेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की, जिस जो बायोलॉजिकल हमारे अंदर एक ट्रांजिशंस आती रहती हैं, चाहे वो पीरियड से लेके ऑल ऑफ द स्टेजेस दैट कम विद इट, देन मैटरनिटी लीव, ऑल ऑफ दैट, आई थिंक वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वहाँ पे काम करने की जरूरत, दैट्स नॉट आवर जॉब। या मैं एक कॉर्पोरेट स्लेव एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स नॉट माय जॉब। आई कैन टॉक अबाउट इट, आई हैव दैट वॉइस, मैं उसको सही तरह यूज़ करूँ, एंड अस सिटीजन्स शुड, हमारा पूरा हक है द राइट टू फ्री स्पीच, हमें उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। बट स्टिल माय पॉइंट बीइंग कि ये अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली हियर अस आउट, एंड द फैक्ट दैट यू मे बी आपने उसको कितना डीपली नहीं सोचा, बट यू स्टिल डिक्लेयर कि आई वाज अनवेल, और मेरे अनवेल का ये मतलब नहीं कि मुझे बुखार हो गया था, एमसी, आई वाज एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस, आई हैड क्रैम्प्स, आई वाज इन सिवियर पेन, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नॉर्मलाइज। हम ये हश हश करके और क्या कहते हैं पार्ट्स को वो कुछ My instructor told me, she said now that men are a certain way, and if they're not accepting it, you can't say. Why did you say? And I was so confused about it. Why is it my job to educate them, to just let me say what was the actual reason? Why do I have to lie? but it is so hypocritical. So it's okay for us to witness men peeing or scratching themselves in public, but we can't talk about something that we have to go to get, जिसकी हमें कोई choice नहीं है। So one other thing that we see all of these progress being made, right? कि स्कूल्स बदल रहे हैं और चीज़ों में अब लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं मस्तों को, एंड उस सारे प्रोग्रेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड मैरिज बिल वाज अ लॉट ऑफ बैकलैश टू इट, बट व्हेन आई वर्क इन these streets and I talk to these people, maybe child marriage is very normal. सो जब तक माइंडसेट नहीं चेंज हो रहा तो इंस्टीट्यूशनल लेवल का क्या फ़ायदा है? एंड देयर दिस गर्ल, दिस मदर हु टोल्ड मी, पहली बात ये है कि हमारी बेटी की शादी किससे हो रही है और कब हो रही है, इस पे उसका तो छोड़ो, हमारा भी इख्तियार नहीं है, ठीक है? तो उसकी बेटी की शादी उन्होंने 1-2 साल पहले कराई है, 14 ईयर्स में, घर के बड़ों मर्दों। जी। एंड डिस्पाइट हैविंग दीज बिल्स, इनका भी इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत मुश्किल है श्योर करना, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट एट द सेम टाइम क्या बिल पास करना ज़रूरी है या अवेयरनेस और इनको माइंडसेट चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज इट्स स्टिल हैपनिंग। आई थिंक इट नीड्स टू गो साइड बाय साइड, पैरेलल वर्क करेगा, बिकॉज हमारे जो लॉ है वो एक अगर वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है आपने लॉ बिल पास कर दिया, हो गया, इट्स इन प्लेस नाउ, बट उसकी एग्जीक्यूशन इज एक्चुअली द क्रूशियल स्टेप, कि आप उसको जो आपके वो निकाह रजिस्ट्रार आ रहे हैं, क्या वो आएकर जी अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, या बिकॉज ही वुड ऑल्सो विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट अगर वो नहीं करे, तो उस चीज़ पे काम कर रहे हैं एक्टिवली, लाइक इज द हमारे लॉ, हमारी इंस्टीट्यूशंस क्या प्रॉपरली उसको उस तरह से काम करी, तो एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल तो पास हो गया, उस पर आपने बहुत मेहनत की, वो भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन टू अचीव, इट इज़ डेफिनेटली अ विन, बट उसके बाद जब जब काम एक्चुअली शुरू हो रहा है, ठीक है, आपने एक जैसे अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, अब उसका एक हमने कर दिया, ऑर्डर हो गया, मिल गया, बट अब जब वो काम शुरू हुआ, उसको फाउंडेशन सेट करना, फिर उसको बनाना, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा, सो उसी तरह हमने भी, सो अवेयरनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑन दिस थिंग, and I feel like a lot of organizations right now are active working, especially with kids. Yeah. So by kids, I mean like students हो गए, like from a very young age. So schools, colleges, चलो schools नहीं, maybe they're fair too young, colleges and universities के अंदर अब बहुत सारे organizations के अंदर बहुत सारे experts हैं जो actively students के साथ बात कर रहे हैं, because like हम सही है पे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होती, they don't talk to us about marriage or like marriage के अंदर मतलब हमारे निकाह के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या हुकूक है,
कि बेटा आपको मेंटेनेंस मतलब ना नफ़का मिलेगा, बेटा आपको हक न्याय मिलेगा, ये आपका हक है जो सिर्फ आपका है। I think it's so important to know your rights even in a marriage. In the end, it's a contract. जी, But it's really important. और I think इसमें यही है कि मर्दों को तो अवेयरनेस की ज़रूरत है ही है, औरतों को भी बहुत ज़रूरत टू अंडरस्टैंड कि उनके क्या राइट्स हैं, ताकि उनको पता हो कि कब वायलेट हो। यस आई वो दोनों की आवाज़ इम्पोर्टेंट है काम से इस लिहाज से, बिकॉज़ होता ही यहाँ यहाँ पे ये है कि जब एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाइक यू आर ऑलरेडी सेग्रीगेटेड लाइक आई टॉक प्रीवियसली, फिर उसके बाद आपको बस बेसिक आपकी हिस्ट्री सिखा दिया है, आपकी हीरोज सेलिब्रेट करनी है, हमने हमने आपको सिखा दिया केमिस्ट्री बायो ऑल ऑफ दिस मैथमेटिक्स ऑल ऑफ दैट। पर जहाँ पे आपकी एक्चुअल ग्रोथ होनी है, अक्सर हम कहते हैं when we ग्रेजुएट कि जो हमें आना चाहिए एज एन एडल्ट, वो स्किल्स हमें आपने वाइब उसकी किया ही नहीं है, इम्पार्ट ही नहीं की वो स्किल्स। तो आई थिंक उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू बी मॉरली सोशली अवेयर ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ लेवल्स। I think awareness का एक ये भी है, even the universities and everybody fears that if you make them aware, they won't remain vulnerable. And when we talking about vulnerability, I think that is the reason child marriage भी इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि बहुत आसान है एक ग्रोन मैन का एक छोटी बच्ची पे अथॉरिटी जताना। सो इवन विद एनिमल्स ये अब्यूज़ जो है पाकिस्तान में, जितने भी स्टैटिस्टिक्स मैंने देखे, मोस्टली इट इज़ मेन अब्यूजिंग वुमेन एंड एनिमल्स, बिकॉज वो थोड़े कमतर परसीव किए जाते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइट बैक नहीं करेंगे। और आज तक आई थिंक हमारे यहाँ पे अब्यूज़ मतलब है। And I think it was so awkward that there was this person in my house, and one of the staff, and she raised us. She was such a wonderful girl, and then she got married. And it was not the husband only जो उसको मारता था, उसके husband के अब्बा, उसके husband के भाई collectively हाथ उठाते थे। And even when we tried to help, they said we'll leave the work, we'll leave the house, but we will not stop beating her. And इन औरतों के लिए इतना नॉर्मलाइज हो गया ये that there was this girl on the street and she said नहीं अब तो हालात बदल गए हैं, my husband has become so good, अब वो मुझे 6 महीनों में सिर्फ 2 दफ़ा मारते, रोज़ तो नहीं मारता। And I think they're also trying to give themselves hope, that why is it कि men, what's the reason for men to want to abuse animals and women altogether? What's the reason for this abuse? Yeah, I think it has a lot to do with like you said कि हम औरतों और जानवरों दोनों को एक inferior race जो है वो उसका हिस्सा है, तो उस लिहाज से हमें पता है कि vulnerable हैं। तो जैसे एक आपने इनकी स्टोरी जैसे शेयर की, तो इनका सिनेरियो क्या है, शी इज़ फाइनेंशियली डिपेंडेंट, शी probably उनको प्रॉपर एजुकेशन दी, which is a case for more than 50% of girls in Pakistan। प्रॉपर एजुकेशन तालीम नहीं दी जा रही है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सके। एंड होता ये है कि फिर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं ऑन द मैन, एंड सो मेन अब्यूज आर पावर टू दी अटमोस्ट एक्सटेंट, वो उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। सेम पोज पर एनिमल्स, बिकॉज दे आर वॉइसलेस, भी कि कोई आवाज़ नहीं है। वी फॉरगेट दैट दीज एनिमल्स कैन ब्रीथ, दे कैन फील, दे हैव देयर ओन फेयर शेयर ऑफ ट्रॉमास, दे विल गो थ्रू अ लॉट, स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग्स हो गए, या वो बहुत चीज़ों से गुजरे होते हैं जो शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, एंड वो फील करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो लाइफलेस बीइंग्स हैं, उनके अंदर दे एक्चुअली डू फील। तो हम ये चीज़ें हम डिसरिगार्ड करते हैं, हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं इन अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख के कि जानवर तो हमारी लिस्ट में बहुत एंड पे आते। वी डोंट स्टॉप टू थिंक कि जो वो एक जो हम जैसे जैसे जब सब्ज़ी वगैरह हम ले रहे होते हैं, तो वो जो डोंकी कार्ट्स के ऊपर वो खड़ा है, नो वन पेज़ एनी हीट। मैं अपने एक दिन, ये मैंने कल विटनेस किया, मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से क्लोज़ली देखा। आई थिंक पार्टली बिकॉज़ वी आर गोइंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, शायद वाज़ एट द बैक ऑफ माय माइंड, एंड मैंने थोड़ी देर मैं देखती रही वहाँ उसको खड़े होके, और वो खड़ा हुआ है, द डोंकी को फिजिट कर रहा है बिकॉज़ प्रोबेबली अनकम्फर्टेबल, आई डोंट नो, एंड वो बार-बार आगे पीछे, एंड दे आर ट्राइंग टू टेम इट ताकि वो मूव ना करे सो दे कैन गो। सो और लेकिन किसी ने देखा ही नहीं, सब अपने उसमें मगन है, बिकॉज़ सब कहते हैं हमारे अपने फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स इतने, व्हिच आई टोटली अंडरस्टैंड कि जिस मुल्क में कंसर्न है या चीज़ों से हम गुज़र रहे, इवन ग्लोबली भी अब आप देखें देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। आई थिंक हम बहुत डिसेंसिटाइज, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए तो फिर नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए एक औरत को के ऊपर एक
कि वो पावर के अब्यूज़ करना by getting her or telling her you're good for nothing. Even though probably she's doing more than just जो एक आदमी डेली बेसिस पे कर रहा है, क्योंकि वो इमोशनल लेवल पे भी बहुत कुछ शी इज़ डीलिंग विद अ लॉट. There's a lot of psychological changes in her bodies. So this is like motherhood हो गई, and then bodily और भी बहुत सारी चीज़ें, not just motherhood. So वो she's dealing with a lot, and चूँकि उससे बात नहीं होती है तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता. सो वो चीज़ें हम बिल्कुल डिसरिगार्ड उसका करिए. सो वी आर लाइक यहाँ पे एट लिबर्टी के. एंड आज देख को से ना हमने हर चेंज को और हर चीज़ों को ना ऐसे डिसरिगार्ड करने के लिए एक मजाक बना के कोई अगर किसी के फेशियल हेयर हैं बस एक बायोलॉजिकल उससे भी आ सकते हैं तो उसको 4 नाम दे देंगे, वेट पे 4 नाम दे दें. फिर जानवर के ये भी गधे को हम ऐसे ही कर देंगे, कुत्ते को गाली बना देंगे. सो एक बस एक ह्यूमर वे में उस पूरी चीज़ को बजाय रिकग्नाइज करने के उसका इतना मजाक बना दिया दैट आई थिंक people are conscious to even come out and talk about it because they know कि ये तो एक मजाक है. मजाक को सीरियस करना बहुत मुश्किल है. You're absolutely right. My friend last time she was telling me कि तुमने phrases देखा करो उनके यूज़ करते हैं, सिर्फ वो कुत्ते की तरह आवाज़. Yeah. Like look at the I was taking एकदम से I was like wait hold on I need to absorb this revelation कि मैंने I didn't stop to think about this कि किस तरह के phrases हम associate करते हैं with people और even like जिस तरह जानवरों को ई के साथ नाम किए उस तरह कुत्ते की तरह मारा या ये हमें लग रहा होता है कि हाँ ये कैजुअली है. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी रॉटन कॉन्सेप्ट कि मजाक करे. आई नीड टू रिलैक्स. आई डोंट वांट. आई थिंक आपकी सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है थ्रू दीज फ्रेजेस क्योंकि औरत आधा सरा और जानवर जितने ऑप्रेस्ड है ना उतनी उनके बारे में जो है ना इस तरह की स्लैंग्स ने या मॉकरी डेथ इनका मजाक बनाया जाता है. यू मेक जोक्स आउट ऑफ इट एंड देन these jokes are circulated in online and offline groups. हमारी जो ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस होती हैं, I think it was मैं हमेशा I would actively just dismiss myself from these conversations because मुझे ऐसा लगता था कि like I don't want to be a part of it because if I'm sitting there then I am like normalizing this thing. Yeah. Not just in my head, but मैं लोगों को भी बता रही हूँ that it's fine with me, a woman, a girl, it's fine for me to sit and listen to these jokes. I don't want to laugh at them. I don't want to acknowledge them. So I'm choosing the right to stand up and just leave the room. Yeah. And so like now for me it's gotten a bit easier. I don't know why that. I don't think I should say easier, but the fact that I'm openly talking about these subjects now publicly, so people not just like yourself or like my friends, but my family even is well aware of my way of thinking. So like अब उनको पता होता है ये आ गई है तो अब किस तरह की conversation. So it's just a lot of fun. So one of the people in my family they told when you're talking about it तो dog बोल दिया करो कुत्ता ना बोला करो क्योंकि कुत्ता and I was like I feel अगर आपको कोई गाली में कुत्ता कहे तो आप बहुत खुश हुए क्योंकि कुत्ता बड़ा लॉयल है अब बड़ा अच्छा है. So yeah, so you people do say ना मैं जब काम करती हूँ तो मुझे तो मेरा नाम उन्होंने रखा कुत्ते वाली. मैं कहती बहुत अच्छा नाम है. जो आपने जो भी देना है I think all of these plans I think they reflect more on your head what you are as a person. हम नहीं देना चाहते. Art is a reflection of It is an election. Yes, it is true. आप दे. this is exactly what I did with the word fat. So like growing up मैं कहती थी कि मैं अपने आप को कहती नहीं curvy कि like when I grew up, not when I was a teenager, but like when I became like a मैं इतनी क्या कहना no woman now, but I'm going to say that I'm curvy and I'm not going to use the F word meaning fat. तो मैंने उस चीज़ को बहुत साल इसके then one day I was just like why Yeah. what is so wrong with this word? मैं क्यों नहीं associate कर सकती? And I would just be like, हाँ ठीक है, I am fat. Fine. I will. Oh, I don't think of it as like disrespect or you bringing me down. I will own up to it. So I think we need to change. Change that. But the longest time, the longest time, I was low-key bullied on the skin color. And when I went, it was not until I was in university. And again, what you said, I would say I'm wheatish. आप sugarcoat करते हो just to, tell yourself that it's okay. And when I went to Turkey, and when I started there, and the people, their reflection in their heads, that was so pure. That was the time I said, I'll own it. I like it. Yeah, I'm made like this.
So I'm okay with it. So yeah, I am dark, I'm not fair. अब मैं क्यों बोलूँ कि मैं इनमें fair हूँ? नहीं, अब नहीं, this is me. So वो own ही नहीं करने देते यहाँ पे इस mockery से. And I think it starts so young. आप खुद भी अपने changes देख रहे होते हैं, फिर जब लोग करते हैं, so you try to dismiss even yourself कि you insult yourself. It's so Pakistan में I think every woman उनको कोई label दिया जाता है. Again, there's no ideal. Yeah, even for animals, I feel कि उनका भी एक different है. I really want to point this out since it has a lot to do with how we are raised. हमारे पेरेंट्स किस जगह पे हमें टोक रहे हैं, किस जगह पे नहीं टोक रहे, किस चीज़ को वो डिसमिस कर रहे हैं. सो आई सी अ लॉट ऑफ witness a lot of kids the way they treat animals on the streets. I think it starts very young. Yes. आप स्कूल में अपने जो है फ्रेंड से किस तरह बात कर रहे हैं, एंड इफ यू आर हिटिंग देम और इफ यू आर jokingly communicating something to them, what are the teachers doing about it? What is the school trying to silence or sweep it under the carpet? फिर जब गली में आप किसी बच्चे को देख रहे हैं कि वो कोई रस्सी या कुछ भी लेके किसी जानवर को ड्रैग कर रहे हैं, they think it's amusing. Go buy a toy. जाएँ उसके साथ ऐसे खेलें. This is a living, breathing, species. And what will that child grow up to be? I know I was at this place. Scares me to look at that. I was at this place and there was two kids. There were two kids. I didn't know what they did. उन्होंने एक dog के newborn puppies को एक बोरी में डाल के we just ज़मीन पे. And okay, that happened. उनकी misery अलग है. But when I looked at the kids, I was scared of the kid because what will you grow up to be? That is scary. What will you do with your daughter, with your child, and with your wife? Because if this is okay and amusing to you, आपको वो feeling आ गई है कि मैं ये करके कर सकता हूँ, I'm powerful enough. And the parents and the community, they did not care. I think this is why we need to normalize therapy Yeah. and counseling because बहुत young age से आपको identify कर लेना चाहिए अपने बच्चे के अंदर इन चीज़ों को, and there's nothing to be ashamed. Yes, इसमें आपको hesitate करने की ज़रूरत नहीं कि नहीं लोग क्या कहेंगे, वो बोलो तो कहने. और I'm sorry to reveal this, but लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते. नहीं होता, yeah. ठीक है, and they are very happy when you are miserable, when you are like at the lowest point in your life. और जब आप कुछ अचीव भी करने के लायक थे, वो खुश नहीं हो, वो उनको अपनी खामियां ही नजर आएगी तब. वो आप बिल्कुल अब्जॉर्व कर लेंगे खुद को कि इस चीज़ से कि वो इससे कुछ करने लायक, दे डोंट केयर. प्लीज़ इस चीज़ को एक्नॉलेज है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट बच्चों की काउंसलिंग एक यहाँ पर से वो हो जानी चाहिए सो दैट दे डू नॉट एंड अप लाइक आई एम सॉरी बट मुझे अंदर से फील हुआ एंड इट्स स्कैर्ड यू व्हेन यू शेयर दैट स्टोरी विद मी. बिकॉज़ इवन दो आई सी काउंटलेस वीडियोस जहाँ पे लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे होते कि ये हो रहा था, एंड सम women I'm going to be very clear with you, they try to stop it. क्योंकि ये चीज़ें it's very important to call, not just call the kids out, but then ये इनके पेरेंट्स के रिस्पॉन्सेज about it, not some stranger कि वो आपको आके रोक रहा है कि ये मत करो बच्चे, ये गलत है. Yes. एक दफ़ा एक फैमिली जा रही थी और पता नहीं बच्चे लड़के स्पेशली दे आर मोर वायलेंट टुवर्ड्स एनिमल्स. तो यही था वो सारी बहन भाई इकट्ठे जा रहे हैं, सारे लड़के पत्थर मार रहे उठा उठा के. तो बहन वाज लाइक डोंट डू इट. सो एक ही हाउस होल्ड में है, लड़का कर रहा है लड़की नहीं कर रही है. सो मे बी व्हाट यू डूइंग विद द गर्ल ट्राई मोर दैट ऑन द सन. या मे बी इट विल मेक हिम अ बेटर बॉय. आई थिंक हम लड़कियों को बहुत डिफरेंटली रेज Yeah. थे. उनको एक नर्चरिंग रोड अदा करना चाहिए आता है, रहते सॉफ्ट ओबीडियंट sonker and sir झुका के and just like very sophisticated, all of those things, which is very good in like a social setting when you are presenting yourself or in a professional space. But like एक timid होना सिखाना, I don't think is the right thing to do about it. Then those rules should also apply to you, the son. He should also be soft spoken. He should be a good listener. He should be tender, whether it's with the parents or with anyone, like his friends, whosoever, मतलब जो भी हो. तो आई थिंक you're absolutely right कि the same household, Yeah. लेकिन रवैये ही फ़र्क होते हैं, बिल्कुल opposing. And then we're talking about education. जी. Because I'm working in education and I really want कि क्योंकि I understand one thing कि जब तक मैं लोगों के consequences डील करती रहूँगी या मैं डिप्लीट हो जाऊँगी, ये जुल्म नहीं ख़त्म होगा. एंड बच्चे से अगर मैं किसी एक को भी सिखा दूँ तो शायद वो चेंज ज़्यादा ज़रूरी है. वी नीड इट. ये तो करना ही है लेकिन वो बदलाव तो वहीं से आना है. बट एट द सेम टाइम इस एरिया में वहारशा रोड पे आई रियली वर्क.
सो वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की है कि दे डोंट गिव एक्सेस टू देयर डॉटर्स। वो चाहते ही नहीं है कि उनकी बच्ची पढ़े। एंड स्कूल में ऑल ऑफ दोज वुमेन हैव टोल्ड हमारे बेटों को इजाज़त है, हमारे बेटियों को इजाज़त ही नहीं है। सो जब गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है या हम एनजीओज काम करना चाहते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ राइट ऑल्सो टू टेल द मेन टू अलाउ, like it's 2025 and girls are not allowed to go to school, and this is not just in Afghanistan, and this is not in somewhere, it's in your city, 10 minutes away from my house it is happening, and it's a reality, and they're not allowed क्योंकि I don't know, maybe वो पढ़ के शायद सोचते कुछ या क्या है, but they're not allowed। इन सारी बस्तियों की लड़कियों को इजाज़त नहीं है स्कूल जाने की। I think it has a lot to do with the fact that men, especially a lot of families, believe कि लड़की ने तो अब दूसरे से घर जाना है या बड़े होके तो उसको इतना पढ़ा के क्या करते हैं unless she wants to become a doctor, which पता नहीं है कि फिर आगे जाके बनना भी चाहती नहीं तो why bother spending so much money with her tuition fee या फ्री में भी फ्री पेडिंग है तो क्या ज़रूरत है इससे पढ़ लिख के क्या ही करना है या कि कोई सिलाई कढ़ाई वाला काम सीख ले या इस तरह वाली चीज़ें सीख ले जो लाइफ स्किल्स के जो किसी के हम काम आ सके जिसको वो सर्व करेगी अल्टीमेटली वन डे तो वो सब सीख ले बट आई थिंक वो ये होता है कि नहीं बेटे को पढ़ाने पर उसने नौकरी करनी है या कारोबार संभालना है जो भी डिपेंड्स ऑन द फैमिली और क्लास probably that's the reason why they don't want to spend on the girls is particularly their education और फिर ये अक्सर मैंने ये देखा है and I think this is I don't know if it's a class issue but like you were starting in general Valpu so I see a lot of girls वो जो है वो एक्टिवली काम कर रही होती हैं bringing in money in the house yes and it's never the boys and वो एक अपने स्टार्टअप में बिलोंग करके भी बहुत प्रिविलेज पोजीशन पे होते हैं जहाँ पे वो बस उन्होंने पढ़ना है नहीं भी पढ़ा कोई बात नहीं लड़का है थोड़े बहुत भी पढ़ लिया पढ़ना तो है उसको पुश कर रहे होते बेटी कह भी रही कि मुझे भी स्कूल जाना है मुझे भी ये कॉपी पेंसिल ले दो मैं भी जरा जाऊँ स्कूल पढ़ूँ तुमने क्या करना है पढ़ के उसको शी वॉन्ट्स टू स्टडी वो कह रही है कि मुझे पढ़ना है मैं पढ़ लिख कर कुछ कर लूँगी कोई काम कर लूँगी आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बट नहीं हमारा ये माइंड सेट ही नहीं है क्योंकि हम अपने कल्चर जो हमारा कल्चर है वो इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करते हमारे सोसाइटल नॉर्म्स जो हैं उस चीज़ को अलाउ ही नहीं करते हम बस जिस तरह सब चल रहे हैं हम भी वही मेंटालिटी के वैसे ही हम भी चलेंगे बस ज़्यादा सोसाइटी में ऐसे सब चल रहे तो हम उसके हट के कुछ करेंगे ना तो फिर पीपल विल लुक एट अस एंड दिल थिंक ऑफ अस वो हमें ना शांत कर देगी है सोसाइटी से एंड दैट इज़ गोइंग टू बी प्रॉब्लम आई थिंक us women who are working especially in these speeds we do feel that way I feel alone most of the time मुझे ऐसा लगता है मैं इतना काम करके भी मुझे अकेला महसूस होता है आई ड्रेड कि मैंने ये क्यों किया देयर आर मोमेंट्स और हमें क्या ज़रूरत थी मैं भी तो आराम से ज़िंदगी गुजार सकती थी मैं भी जो हूँ ना कहती कि मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की पढ़ाई करने की मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ और भी पढ़ना है मुझे अब आगे क्यों मेरी क्यों ये सोच आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस thing inside me that's telling me to fight. I want this voice to shut up. Okay, so now there's this one thing that I want to explore, and after working with animals for a while, I questioned this personally, because obviously आप पाकिस्तान में अगर रहते हैं, आप एक certain education आपने कर ली है, and you start as a person that I am, if I'm talking about personally, it's not, it will happen कि you will agree with feminism because it suits you, and you need those rights, and it's so I was a feminist, and औरतों के body के rights, औरतों के rights generally. But when I worked with animals, I understood that their women don't have rights. जो ये पूरी breeding industry है कि I basically bought a dog. The first dog that I got, I bought him for 30 something thousand rupees, and breeder की दुकान के में और गई मैं और मैं लेकर आई, and my sister said कि ये animal love नहीं है हया, तुमने ये जो अलग किया है ना कुत्ते को उसकी अम्मा से, this is not okay. And that was the first time I thought, okay, and I felt so bad because I liked animals. I did not know how to project that love. So I said, okay, नहीं ये तो गलत है, तो मैं ना मिलवाने ले जाऊंगी, मैं नहीं बहुत तोड़ूंगी. एंड जब मैं उस पूरे प्रोसेस में रही कि मैं उसको उसकी अम्मा से मिलवाने लेके जाती हूँ, आई अंडरस्टूड द लाइफ ऑफ द मदर. सो दैट मदर वॉज इन अ केज, प्रॉब्ली डाइड राइट नाउ बिकॉज 3-4 साल हो गए. बैक टू बैक प्रेगनेंसीज, नेवर अ ब्रेक टू हर बॉडी, नेवर. एंड शी वॉज सो ट्रॉमेटाइज कि वो जब
उसको खिलाने के लिए भी लेके आते हैं, वो बस पीछे देखते हैं कि उसको पता है कि हर टाइम उसको इधर-उधर ले जाते हैं, उसका एक ना एक बच्चा बेच देते हैं। एंड ऑल द मदर्स जो डॉग्स हैं, आई हैव सीन देम बीइंग वेरी अपसेट जब उनका बच्चा कोई उनसे छीन लेता है या डेथ हो जाती है। व्हेन आई वेंट ऑन अ फूड ड्राइव और मेरी जो डॉग थी उसके ना छोटे से बेबीज़ को किसी और डॉग ने मार दिया। And that dog, I sat with the dog till 2 a.m. and my parents were calling me and really like, where are you? He's like, I can't leave it because you know what that mother was doing? She was digging a grave, burying the child. She would sit on it, cry, and then dig it again, take the baby out and hug it. And she was doing it on repeat and I was so confused. How do I help her? How do I say anything? So when breeding industry में माँ की मौन को तोड़ देते हैं and then breeding industry में artificially inseminate करते हैं, that is और उसका पूरा जो एक द टर्म दैट दे यूज फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इट्स कॉल्ड रेप रैक्स उसकी ऑफिशियल टर्म ये। सो जब मैंने एक फेमिनिज्म के लेंस से ब्रीडिंग इंडस्ट्री देखी है, सो व्हाई इज इट कि नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट दैट मच दैट बॉडी राइट्स तो एक औरत के स्पीशीज अगर हम छोड़ दें, व्हाई इज नोबडी टॉकिंग अबाउट दिस? डू यू आल्सो फील दिस कनेक्शन और मे बी इट्स लाइक आई एम लाइक टू नो, इट इज़ डीपली इंटरकनेक्टेड। अगर आप देखें, मैं औरत के जैसे बात करूँ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि उसकी कोई आवाज़ नहीं है या उसकी बॉडी के ऊपर कोई ऑटोनॉमी नहीं है, सो आई टॉक अबाउट द फैक्ट दैट देयर इज़ दिस बाय कल्चरली पॉपुलर सेइंग कि अगर एक मर्द कह रहा है एक औरत को दैट यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, यू हैव टू अबाइड बाय सर्टेन थिंग्स, बट इफ शी इज सेइंग नो, देन दैट्स रॉन्ग। क्योंकि वो हमारी सोसाइटी में मैरिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नहीं, तुमने अगर तुम्हारे मर्द ने तुम्हें कहा है ना तो तुम्हें मानना पड़ेगा। यस तो शी सेइंग नो, वो नहीं चाहती है। अगर इफ शी सेइंग नो, यू हैव टू लिसन टू हर। एंड इसके अंदर और एक रिलीजियस लेंस भी है, एंड जो मैं तो इस पे बात कर सकते हैं, दे शुड टॉक अबाउट इट कि जब वो मना कर रही है, उसका पूरा हक है मना करने का, इवन इफ शी इज़ योर वाइफ, यू हैव नॉट बॉट हर, शी इज़ नॉट योर स्लेव। और जब हम एनिमल्स की भी बात करते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक हमें पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। वी डोंट नो ये अबाउट दिस रियलिटी दैट यू जस्ट शेयर्ड कि किस तरह से वो अपना जो है पेन, अपनी मिज़री, अपना ग्रीफ, अपना ट्रॉमा वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम हियरिंग कि वो किस तरह से दे आर एक्सप्रेसिंग। एंड आई थिंक इट्स देन येस, इट्स अप टू अस एज़ सिटिज़न्स टू वाइडली टॉक, स्पेशली जो सेक्टर में काम कर रहे हैं वो, व्हिच इज़ आई फील लाइक पाकिस्तान में कम है। पहले तो नॉन एग्जिस्टेंट थे। सो द फैक्ट दैट इवन दो आई एम सेइंग दिस इन अ मैनर कि मुझे बेयर मिनिमम है, लेकिन अब थोड़ी बहुत लेवल पे अनफॉर्चुनेटली इट्स जस्ट द वुमेन who are actively working in this sector, लेकिन एक स्टार्ट हो गई है। And I feel like the more you actively talk about it, us as citizens, I think the more इसके ऊपर फोकस होगा, बिकॉज ये बहुत लार्ज इंडस्ट्री है जो ये चीज़ में घुसी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब मैं बात करती हूँ फार्मा इंडस्ट्री की, या वो जब हम बहुत सारी काउंटलेस डॉक्यूमेंट्रीज, देयर काउंटलेस प्रोग्राम्स जो कि डिबंक कर रहे हैं और जो कि एक्चुअली टैप इन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि देखिए ये अंदर क्या चल रहा होता है। हाउ आर दे मैनिपुलेटिंग द कंज्यूमर सोसाइटी के, आप ये चीज़ लो, ओजेम्पिक से लेके बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से एक औरत की इनसिक्योरिटी, इसी तरह इट इट वर्क्स दिस इन द सेम मैनर देयर एनिमल्स। ठीक है, लेकिन क्या एक भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इस तक पहुंच तो नहीं सकते, राइट? ये लेकिन ये है कि एटलीस्ट जिनको पता है कि एक इमोशनल लेंस से अगर हम उसको देखें और अपनी वो डिसेंसिटाइज सेल्फ को थोड़ा तोड़ने की कोशिश करें, उस पे काम करें, जैसे मैंने थेरेपी पे कहा फोकस करने को, बहुत सारे मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स है, तो तभी जाके हम एटलीस्ट इसके बारे में बात तो करना शुरू करें। ये आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्वर्सेशन। बिकॉज इन दियर आई थिंक एनिमल्स ना एक प्रोडक्ट की तरह देखिए जाके, तो वो एक कैपिटलिज्म जो है ना वो आता है एंड ऑल वी कैन डू इज कि हम एटलीस्ट एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर की तरह एक्ट करें। एग्जैक्टली कि अभी स्पेशली आफ्टर द एंटायर पैलेस्टाइन, इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स का ये बॉयकॉट का है कि इस लोगों को अब समझ आए कि व्हेन यू पे देयर समथिंग दैट एल्स यू माइट बी पेइंग फॉर। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एटलीस्ट थोड़ा सा देखें दैट व्हाट वी आर पेइंग फॉर उसके पीछे क्या हो रहा। दैट इज ट्रू। So I think that is, that is the reason we are sitting here trying to
Exactly, I like the. ये हमारी And I think social media, it does give you a platform nowadays. It does. It does. And in the end, I will just mention this one thing that very stuck with me. So there was this, auntie in this case, and she was telling me about her life, and I said, forget everything. Yeah, you can do anything in your life. एक कोई भी अपनी ख्वाहिश. And she got quiet and then she thought, and I was like, she would say something very cute. She said, I can't. And I told her, नहीं, आप कर सकते. सब फतक हो गया, आप एक चीज जो कर सकते हैं. And she said, I can't. She never thought of it. And I felt so bad कि इन्होंने सोचा ही नहीं. सोचने का दिए नहीं ना, सोचने का दिया कि सोच सकती हो तुम्हारी हो सकती है अपनी क्रिटिकल. Yes, very unfortunate. it was really unfortunate. Yeah. But I just hope that, we can raise awareness like this. People can, so work into it. पूरा पाकिस्तान तो नहीं बदल सकते, but area wise maybe. I think it's very important to recognize women, whether it's in your house, whatever the income background is, and whatever the species is. औरत औरत है. Similar struggles है. और similar need जो मर्द है किसी और की है, वो उसकी भी है. Yes. ठीक है. But thank you so much Thank you, Pab. for having this conversation. And this is the entire point of it. Because when I started working for animals, I understood it does not come from me. For me, it's not coming from a lens of because I like animals. It's coming from a lens that they're oppressed. Yes. And when I go into these places, I see other things that are oppressed. So I just wanted to talk about that कि मेरा मसला सिर्फ जानवरों के साथ ही oppression के साथ. Yeah. And जहाँ oppression है वहाँ बच्चे भी आते हैं, ख्वाजा सरा भी आ जाते हैं, औरत भी आ जाती है. I think you're doing a commendable job just wanting to sit down and have these good tea conversation. And I think we also learn so much from each other. I agree. So it's a really I think this is a good spend of time as well. I agree. It's both enlightening since I was not aware of so many stories that you've shared with us here. And it's made me think. I think I'll carry this with. Thank you so much. And that is another episode of the Street Talks Pack. Thank you so much. And surely we will bring more episodes. Thank you.